Good morning, students. Welcome in social science virtual class. How are you? I hope all of you will be fine. Students, today we will continue chapter 3 of geography, that is minerals and power resources. In previous virtual class we have discussed what are minerals. Minerals are naturally occurring substances. It means they are made by nature. For example, gold, silver, petroleum are made by nature. Student, then we discuss classification of minerals. Student, on the basis of origin composition, minerals are classified into two groups: metallic minerals and non-metallic minerals. Metallic minerals contain metal, or metallic minerals are also classified into two groups: ferrous metallic minerals which contain iron, non-ferrous metallic minerals which do not contain iron but contain some other metal like gold, silver, copper. Or non-metallic minerals are coal, petroleum, limestones are examples of non-metallic minerals. How these minerals are obtained from the rocks? Mining, drilling, quarrying are methods of obtaining minerals from the rocks. Students, today we are going to discuss uses of minerals. Student, minerals are very important part of our life. If we see the knife in our kitchen, which we use in kitchen, it is used by iron. Our jewelry made by gold, silver, they are important. Our doors, विंडोज़, उनके जो हैंडल्स होते हैं किसके बने होते हैं स्टूडेंट्स? मेटल्स के. फैन किस में? फैन में जो अंदर वायर्स वगैरह हैं वो किसके बने? मेटल्स के बने हैं. तो मेटल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ. मिनरल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ आवर लाइफ. Students, which minerals are used in industries? Now we will discuss. Students, minerals which are used for gems are usually hard. These are then set in various styles for jewelry. कि जो मिनरल्स हमारे जेम्स इंडस्ट्रीज में यूज़ होते हैं, दे आर वेरी हार्ड. क्योंकि जेम्स जो हैं, स्टोन्स हैं, दे आर वेरी हार्ड. उन्हें कटिंग करने के लिए जो स्टोन्स यूज़ होते हैं वो बहुत हार्ड होते हैं. फिर उनकी डिफरेंट शेप्स दी जाती हैं जेम्स की, और उन्हें ज्वेलरी में यूज़ किया जाता है. Copper is another metal which is used from coins to pipes. Silicon is used in computer and industry. Aluminium, which we obtain from bauxite, is used in automobiles, aeroplanes, bottling industry, and even in kitchen cooking ware. तो हमारी बहुत सारी चीज़ें, अगर एरोप्लेन देखें किसका बना होता है? मोस्टली एलुमिनियम का. अगर हम बसेस में भी देखें, डोर्स, उसकी वॉल्स किसकी बनी है? एलुमिनियम्स की. कोल्ड ड्रिंक के जो ढक्कन है किसके बने हैं? लिड किसके बने हुए हैं? एलुमिनियम के बने हुए हैं. सो एलुमिनियम मेटल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर इंडस्ट्रीज. स्टूडेंट्स, minerals are made by nature. They are non-renewable. Their production is less and their consumption is more. So they are, we know कि minerals are non-renewable resource. They are made by nature. It takes thousands of years for the formation and concentration. Their rate of formation is much smaller than their rate at which human beings consume these minerals. So what we have to do? When their consumption is more, their production rate is less, they are made by nature, so we have to use it wisely. How we can conserve the resources?
We can conserve the resources by 3 R's. Reuse it. रीयूज़ का क्या मतलब, जैसे डाई, जहाँ कपड़ों की डाई होती है वहाँ पे भी डाई को कई बार यूज़ किया जा सकता है। घर में भी वेजिटेबल वॉश करने के बाद उस पानी को हम प्लांट्स में दे सकते हैं। रिड्यूस, हम मिनरल्स के कंजप्शन को रिड्यूस करें, एक ही जगह बैठकर इलेक्ट्रिसिटी का सेव कर सकते हैं। इसी तरह से रिसाइकलिंग मेटल्स हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिनको रिसाइकलिंग करके यूज़ किया जा सकता है। वाई कंजर्वेशन इज़ इम्पोर्टेंट? बिकॉज देयर सप्लाई इज़ लेस and their demand is more. They are made by nature, so that's why conservation of minerals is important. स्टूडेंट, यहाँ एक छोटी सी स्टोरी दी गई है। आपको क्या क्या स्टोरी दी गई? सनी मदर बिगिन हर डे बाय स्विचिंग ऑन द गीज़र। जब सनी की मम्मा सुबह उठती हैं तो गीज़र ऑन करती हैं, उसके बाद सनी की यूनिफॉर्म प्रेस करती हैं, फिर उसके लिए जूस बनाती हैं। तो इन सब में स्टूडेंट्स क्या हुआ? गीज़र चलेगा इलेक्ट्रिसिटी से, प्रेस किससे चलती है? इलेक्ट्रिसिटी से। जूस बनाने में भी हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? इलेक्ट्रिसिटी की। फिर सनी ब्रेकफास्ट करके स्कूल जाता है तो उसकी मम्मा देखते हैं कि उसने फ़ैन और लाइट्स को ऑफ नहीं किया। जब वो ऑफ़ करती हैं तो वो सोचती हैं कि सिटी में हम लोग बहुत ज़्यादा इन गैजेट्स पर डिपेंडेंट हैं, बट इनकी सप्लाई कम है, डिमांड इनकी ज़्यादा है। सो दैट्स वाई कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज इज़ इम्पोर्टेंट। अब स्टूडेंट, हमने सब जगह देखा, चाहे गीज़र है, प्रेस है, जूस बनाना, लाइट है, फ़ैन है, इसमें सब क्या यूज़ हो रहा है? हमारी पावर यूज़ हो रही है, और पावर का प्रोडक्शन कम है और हमारी कंजप्शन ज़्यादा है, डिमांड ज़्यादा है। So we should use it carefully. Student, power resources are classified into 2 groups, conventional and non-conventional. What are conventional resources? Conventional sources of energy are those which have been in common use for a long time. जिसे हम बहुत लंबे टाइम से यूज़ करते आ रहे हैं, उन्हें हम कहते हैं कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। और उनके एग्जांपल्स क्या हैं? फायरवुड, फॉसिल फ्यूल्स आर एग्जांपल ऑफ कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फायरवुड। फायरवुड क्या है? लकड़ी, वुड। इट इज़ वाइडली यूज फॉर कुकिंग एंड हीटिंग। शहरों में तो हम गैस ही यूज़ करते हैं, पर गाँव में अभी भी इसे हीटिंग और कुकिंग के लिए यूज़ किया जाता है। 50% पॉपुलेशन डिपेंड अपॉन फॉर कुकिंग एंड हीटिंग ऑन फायरवुड। और ये बनते कैसे हैं स्टूडेंट? रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स विच हैव बीन बरीड अंडर द अर्थ फॉर millions of years got converted by heat and pressure into fossil fuels. So fossil fuels are such as coal, petroleum, natural gas are examples of fossil fuels. तो अभी हमने सबसे पहले डिस्कस किया स्टूडेंट फायरवुड को। स्टूडेंट्स, इसके एडवांटेजेस क्या हैं? It is easily accessible, provide energy to large number of people. And what are the disadvantages? Collecting is time consuming. लकड़ी को कलेक्ट करने में टाइम लगता है, और जब हम इसे बर्न करते हैं तो पोल्यूशन भी होता है। प्रमोटिंग ग्रीन हाउस इफेक्ट, प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड जब हम इसे बर्न करते हैं। डिफोरेस्टेशन, जंगलों को कट करना पड़ता है। It leads to deforestation. So these are the disadvantages of this source of energy, which firewood. Now we are discussing students coal. Coal is abundantly, बहुत मात्रा में मिलता है। It is used as a domestic fuel in industries such as iron and steel industry, steam engine to generate electricity. कहाँ कहाँ इसका यूज़ होता है कोल का? आयरन और स्टील इंडस्ट्री में, स्टीम इंजन में,
electricity. The electricity which is generated by coal is known as thermal power. The coal which are using today was formed millions of years ago. और कोल इज़ देयर फॉर, कोल जो हम यूज़ करते हैं इसे बनाने में कितने साल लगे, मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे इसे बनाने में. कोल इज़ देयर फॉर रेफर टू एज दी बरीड सन शाइन, क्योंकि एनर्जी देता है, हीट जैसे सन हमें देता है एनर्जी, इसी तरह से ये जो कोल है ये भी हमें एनर्जी देता है. इट इज़ नोन एज बरीड सन शाइन. द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ वर्ल्ड आर चाइना, USA, Germany, Russia are the leading producer countries of coal. In our country, it is produced in which areas? Raniganj, Jharia, Dhanbad, Bokaro. It is found in these areas. स्टूडेंट नेक्स्ट जो हम डिस्कस अब कोल की, स्टूडेंट्स ये बताएं कि इसकी एडवांटेजेस क्या हैं. एक्सटेंसिवली अवेलेबल, एफिशिएंट कन्वर्जन टू इलेक्ट्रिसिटी. अब इसके डीमेरिट्स क्या हैं स्टूडेंट्स? पोल्यूटिंग सोर्स एंड बल्कि टू ट्रांसपोर्ट. इससे पोल्यूशन भी होता है और एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने में इस एक्सपेंसिव भी है, साइज़ में भी बल्कि है, तो ये इसकी डीमेरिट्स हैं. आर नेक्स्ट सोर्स ऑफ कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी इज पेट्रोलियम. Petroleum, student, it is obtained from Greek word that is petra. Petra means rocks और oleum means oil. तो petroleum means rock oil. स्टूडेंट हमारी कार किससे चलती है? पेट्रोलियम से. और साइकिल के पैडल अगर ग्रीस ना हो तो अच्छे से घूमते नहीं हैं, वो भी किससे ऑब्टेन होते हैं? इस जो हमारी ग्रीस होती है उससे चलते हैं. स्टूडेंट पेट्रोलियम इज़ फाउंड बिटवीन दी लेयर्स ऑफ, आप अपनी बुक में अंडरलाइन भी करें जैसे हमने मार्कर से किया हुआ है, आप भी इसी तरह से मार्कर से भी कर सकते हैं और पेंसिल से अपनी बुक में अंडरलाइन करें. इट इज़ फाउंड बिटवीन दी लेयर्स ऑफ रॉक्स एंड इज़ ड्रिल्ड फ्रॉम ऑयल फील्ड लोकेटेड इन ऑफ शोर्स कोस्टल एरियाज. दिस इज देन सेंट टू दी रिफाइनरीज विच processes the crude oil and produce a variety of products like diesel, petrol, kerosene, wax, plastic and lubricants. Petroleum and its derivatives are called black gold as they are very valuable. क्यों इसको पेट्रोलियम को हम कहते हैं, क्रूड ऑयल को ब्लैक गोल्ड? बिकॉज जैसे गोल्ड बहुत वैल्यूएबल होता है, ये भी बहुत वैल्यूएबल होते हैं. वेयर इट इज़ फाउंड? इट इज़ फाउंड इन दी रॉक्स. व्हाट आर दी प्रोड्यूसिंग कंट्रीज ऑफ दी पेट्रोलियम? मेन प्रोड्यूसिंग कंट्रीज ऑफ दी पेट्रोलियम आर ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया. अदर मेजर प्रोड्यूसर आर USA, Russia, Venezuela. In our country, in which area it is found? It is found in Digboi in Assam, Bombay High in Mumbai, and deltas of Krishna and Godavari rivers. Students, so now we discuss our conventional source of energy, that is petroleum. Students, now we are going to discuss natural gas. Natural gas is found with petroleum deposit and is released when crude oil is brought to the surface. जब हम नेचुरल गैस कहाँ से मिलती है? जब हम पेट्रोलियम को ऑब्टेन करते हैं, then when crude oil is brought to the surface then it is obtained. ये भी उसके साथ जहाँ क्रूड ऑयल होता है नेचुरल गैस भी हमें वहीं मिलती है. इट कैन बी यूज एज अ डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल फ्यूल. इसे घर में भी हम कुकिंग में भी यूज़ करते हैं और इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं. व्हाट आर दी प्रोड्यूसिंग कंट्रीज ऑफ मेन प्रोड्यूसिंग कंट्रीज ऑफ नेचुरल गैस? कौन कौन सी मेजर लीडिंग प्रोड्यूसर्स कंट्री हैं? रशिया, नॉर्वे, UK, Netherlands are major producers of natural gas. In India, it is produced in Jaisalmer, Krishna Godavari Delta, Tripura,
and some areas of offshore in Mumbai have natural gas resources. स्टूडेंट्स, इनकी कंजप्शन ज़्यादा है और प्रोडक्शन इनका कम है, तो हम क्या करें? वी हैव टू यूज़ इट केयरफुली एंड आल्सो वी हैव टू शिफ्ट फ्रॉम कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी टू नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी क्या हैं? अभी हमने डिस्कस किया, कोल, पेट्रोलियम, फायरवुड, natural gas. These are conventional sources of energy. These are limited, these are made by nature, so they take millions of years, but our production is more, demand is more, so we are using more and more. In this way, students, if we will use it, they will be over. So what we have to use? We have to use it carefully, and also we have to switch from conventional source of energy to non conventional source of energy. स्टूडेंट, एक और भी है कन्वेंशनल सोर्स जिसे हम बहुत लंबे टाइम से एज अ एनर्जी यूज़ करते आ रहे हैं, दैट इज़ अ हाइडल पावर। अब हाइडल पावर क्या है स्टूडेंट्स? रेन वाटर और रिवर वाटर स्टोर्ड इन डैम is made to fall from heights. The falling water flow through pipes inside the dam over the turbine blades at the bottom of the dam. The moving blades then run the generator to produce electricity. This is called hydroelectricity. इसका क्या मतलब है स्टूडेंट? हम रेन वाटर को और रिवर वाटर को स्टोर करते हैं, फिर बहुत हाइट से पाइप के थ्रू से टरबाइन पर फॉल किया जाता है। टरबाइन कैसे होते हैं बेटा? जैसे आपके साइकिल के पैडल्स हैं और उसमें दिखाया भी गया है, देखिए यहाँ पर टरबाइन लिखा भी है। बड़ी ऊंचाई से टरबाइन पर इन पानी को डाला जाता है, तो टरबाइन बड़ी तेज़ी से चलते हैं और हमारी वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, और इस इलेक्ट्रिसिटी को क्या कहते हैं? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। 25% जो वर्ल्ड की एनर्जी है किससे प्रोड्यूस होती है? वाटर से, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने वाली कंट्रीज कौन सी हैं? पैराग्वे, नॉर्वे, ब्राज़ील, चाइना। सम इम्पोर्टेंट हाइडल पावर स्टेशन जो इन इंडिया आर भाखड़ा, नंगल। ये तो थी कंट्रीज। पैराग्वे, नॉर्वे, ब्राज़ील आर main important countries which are largest producer of hydroelectricity. In our country, hydroelectricity is produced at Bhakhara Nangal, Gandhi Sagar, Naga Arjun Sagar and Damodar Valley projects etc. स्टूडेंट्स, इस इलेक्ट्रिसिटी के बेनिफिट्स क्या क्या हैं स्टूडेंट? नॉन पॉल्यूटिंग है ये, प्रमोट्स इरिगेशन एंड फिशिंग, चिप्स। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के बाद जो वाटर बचता है उसे हम फार्मिंग में भी यूज़ करते हैं, चीप भी है। पर इसकी डिसएडवांटेजेस क्या हैं? डिस्प्लेसमेंट, जहाँ हम डैम बनाते हैं लोगों को वो प्लेस छोड़कर दूसरी जगह जाना पड़ता है। एंड एक्सपेंसिव टू सेटअप, इसे लगाने के लिए बहुत मनी भी स्पेंड करनी पड़ती है, तो ये इसकी डिसएडवांटेजेस हैं। स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी को डिस्कस किया, मिनरल्स के यूजेस को डिस्कस किया। मिनरल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। जो हमारे ज्वेलरी है, नाइफ हैं, डोर्स के हैंडल्स हैं, फैंस हैं, हर जगह हमारा क्या यूज़ होता है? मिनरल्स यूज़ होते हैं। और किन किन इंडस्ट्रीज़ में? एल्युमिनियम इंडस्ट्री, कॉपर, हर कंप्यूटर, एवरीवेयर मिनरल्स आर यूज्ड। अब मिनरल्स क्या हैं? दे आर मेड बाय नेचर, दे आर लिमिटेड, सो वी हैव टू यूज इट केयरफुली। Energy resources, power resources are classified into two groups, conventional and non-conventional. Conventional sources of energy are those which have been in common use for long time. जिसे हम बहुत लंबे टाइम से यूज़ करते आ रहे हैं उससे हम कहते हैं कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, जिसमें हमने डिस्कस किया फायरवुड इन 50%
रूरल पीपल यूज़ फायरवुड एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। सेकेंड डिस्कस किया कोल, इट इज़ अबंडेंटली फाउंड इन आवर कंट्री। एंड थर्ड डिस्कस किया पेट्रोलियम, इट इज़ आल्सो नोन एज ब्लैक गोल्ड। देन फोर्थ वी डिस्कस नेचुरल गैस, और हमने लास्ट में डिस्कस किया हाइडल पावर। दीज आर